Okay guys, how are you all? I, C.S. Swati Agrawal, welcome you all to my new video regarding a very interesting subject, yet little hidden, little question by the student, that is economics for finance. Guys, at CA intermediate level, there are total 8 subjects, and the last subject, which is a 100-mark subject, the name of the subject is Financial Management and Economics for Finance. Now, why I said Financial Management and Economics for Finance? Because together they form a 100-mark subject, and of which 60 marks comprises of your Financial Management and 40 marks is your Economics for Finance. Now, regarding Financial Management, I'll be making a separate video in which I'll explain you all the topics, all the details. But somewhere regarding financial management, students are very much mindseted, they are very much prepared, and they know it's a practical subject. But for economics for finance, many students have that dilemma in their brain, and they keep on saying, just like the whole group 2, this is again a theoretical subject which is little boring, and we might not be able to cope up with the subject. So guys, let me tell you, like any other practical subject, economics of finance being a theory subject itself has lot of practicality in it. Now, if you will ask how, the name starts with the word economics, and we have studied this economics in our 11th, 12th as well as in CA Foundation. So number 1, what makes it different? Number 2, how can we study the subject? Number 3, what is the purpose of putting this subject in CA intermediate level? So guys, we'll go through the subject. I'll tell you about the subject and the content of the subject, and धीरे धीरे ये सारे questions आपके answer हो जाएंगे that what is the need of putting this subject at a CA intermediate level. Guys, कम नहीं, this subject is of 40 marks, and this is one of the most scoring subject. How? In spite of being theory subject, you will be given 1 or 2 practical question. Till now, what ICI has given in the paper, अभी तक के पेपर पैटर्न में नॉर्मली 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते ही हैं, एंड रेस्ट जो भी थ्योरी क्वेश्चंस भी होते हैं, दे आर ऑल डिवाइडेड इन 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन. सो गाइस, जब इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इफ यू आंसर टू द पॉइंट, देन डेफिनेटली देयर आर चांसेस टू स्कोर फुल मार्क्स इन द सब्जेक्ट. सो दिस इज अ सब्जेक्ट जिसमें 40 में से यू कैन स्कोर इवन 35 प्लस. ओके, नाउ है क्या ये सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स, डज इट हैज डिमांड सप्लाई, डज इट हैज माइक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन और मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन? इस क्वेश्चन का आंसर इसके नाम में है. द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स फॉर फिनेंस, और यू कैन से इट इज अ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स. जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट अ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मॉनेटरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. बट यहाँ पर हम एक इकोनॉमी के फिनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करेंगे. हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, हाउ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एन इकोनॉमी वर्क्स, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस इज ऑल अबाउट. नाउ, what all chapters are there, how the content is divided, and what are the basic ingredients of all the chapters. So number 1, your whole syllabus of economics or for finance is divided into just 4 chapters. Yes, 40 marks subject, only 4 chapters, roughly 10 marks each. Yes, that is how the structure is defined. What all 4 chapters are there? So just to make your link with the subject, number 1, वही सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने 12th में ऑलरेडी पढ़े हैं. Yes, the subjects, the topics which we have gone through in 12th standard at very basic line, it is there itself. That is your macroeconomics part, but with a lot of depth. तब हमने पढ़ा था just to score. Now we will
go into the subject and will understand each and every part of it. Now क्या क्या है कंटेंट? पहला टॉपिक नेशनल इनकम, नंबर 2 पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी, नंबर 3 मनी एंड नंबर 4 इंटरनेशनल ट्रेड। यही 4 टॉपिक्स हम सब ने पढ़े हैं 12th में और यही वापस ये इंटर में आ गए हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज इन द कंटेंट, द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब 11th या 12th में हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, हमारे लिए इट्स मोर अबाउट अ थ्योरी सब्जेक्ट जिसे हमें मगअप करना है, याद करना है, एंड वी नीड टू रिप्रोड्यूस इट एंड दैट्स इट। बट नाउ the level as a student of yours have also increased. Now you are able to relate more to the things around you and that is how things will work. National income, yeah, बहुत बेसिक टॉपिक है एंड पीपल थिंक कि नेशनल इनकम मतलब क्या? इज इट द इनकम ऑफ द नेशन? यस, बोल सकते हैं, पर क्या इंडिया एज अ कंट्री विल गो एंड अर्न समथिंग? नो। नेशनल इनकम फॉर्म किससे होती है? उसके सिटीजन से, उसके रेजिडेंट से, राइट? Just a very good relation to it is family income. Now whenever we say a family income, what does that mean? Income of all the family members, right? Similarly जब हम national income की बात करते हैं तो हमारा जो country है इंडिया, उसके अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों का टोटल इनकम। सो इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, किसका इनकम इंक्लूड होगा, किसका इनकम इंक्लूड नहीं होगा। गाइस जब वो चैप्टर्स चलेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस होती है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट इज नोइंग हाउ टू राइट आंसर्स। गाइस पहला आपको सबसे पहले ये समझना है कि टॉपिक क्या कहता है, व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एंड नंबर 3 हाउ टू रिप्रोड्यूस दैट थिंग। सो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके अंदर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम में आता है और जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर हाउ यू राइट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now moving towards again national income. So national income जब हम कहते हैं कि हमारे residents का income है, so does it has anything related with the residential status of the citizens? Yes, it does. Right? जब हम कहते हैं national income, that doesn't mean the income of people residing in the nation. It means income of Indians. Right? हमारे जो देशवासी हैं, जो भारतवासी हैं, उनकी इनकम कितनी है, हमारे जो इंडियंस है उनकी इनकम कितनी है, वेदर दे आर इन द नेशन और आउटसाइड द नेशन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. This chapter has another part as well, that is Keynesian theories of national income. So basically if I talk about national income part, it is divided into 2 parts. One is basic and calculation, number 2 is Keynesian theories, जिसमें आप अलग अलग टाइप के फंक्शंस, कंजम्पशन फंक्शन, इनकम फंक्शन, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, सीखेंगे. ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स योर टॉपिक नंबर 2, public finance and fiscal policy. Now what that particular topic is comprises of, number 1, this is comprises of the market, right? What causes market failure, what are the remedies to it, और गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है तो वो मार्केट फेलियर को करेक्ट करती है या उसे और बढ़ा देती है. So that is what your chapter number 2 part A, that is public finance. The second part of the chapter is about fiscal policy and the purpose, government का intervention कैसे market को correction में help करता है. इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है सीखने की, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन, हाउ द थिंग्स कैन बी रेगुलेटेड. ओके, सो this is what you are going to learn in your chapter number 2. Chapter number 3
is money, one of the smallest topic of your book and most interesting as well. मनी के अंदर ऑब्वियसली जब हम मनी की बात करते हैं तो इट इज कंप्राइजेज ऑफ अवर कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक्स. इट कैरीज द इन फ्लो एंड हाउ द मनी फ्लो गवर्न्स इन द इकोनॉमी. It will tell you about Reserve Bank of India rates, that is repo, reverse repo, CRR and all the money related terminologies, and how this monetary terms, how the monetary aggregates works in the economy. राइट, इंटरेस्ट रेट्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसके कारण मनी का फ्लो कम होता है, ज़्यादा होता है. सो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर are very important in the economy. Like in current scenario, abhi interest rates have gone down, right? And why it happened? All these things at times it comes in our mind and we ask people, we get different answer. But जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो as an economic expert आपको थोड़ा कुछ समझ में आएगा and you will able to relate to the current economic scenario. Okay, so in that particular topic money, obviously we are going to learn all these things और इन सब चीज़ों को consider करके how the monetary policy forms, right? So in this chapter also you will learn about the monetary policy committee, what all support that monetary policy provide to the economy, and this is about this particular chapter. ये था हमारा chapter number 3 money. Chapter number 4 again is very important and very interesting, जिस चीज़ को लेके हम बचपन से देखते आए हैं, सुनते आए हैं regarding exports, imports. So it's all about your international trade, right? This chapter also can be, you can say it is divided into 3 major parts. Number 1 is about international trade and theories. Number 2 is about World Trade Organization, how United Nations plays a role to settle all the international issues. And number 3 is regarding foreign exchange outflow and inflow. ये जब चैप्टर हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं एंड यू नो कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि ये ऐसे ही होना चाहिए और ये ऐसे ही सही है, बट there is always the other side of coin exists. Yes, और इस चैप्टर में हम वो दूसरा साइड भी देखने वाले हैं. It's not always necessary कि अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो कंट्री के लिए गलत है या एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो बहुत अच्छा ही है. There can be some other views also, right? We are not debating on the fact कि ये सही है या ये गलत है. It's more about what can be the other views, what can be the other thoughts, right? कभी कभी imports अच्छे होते हैं. Similarly, devaluation of any currency, right? So whenever हम लोग देखते हैं कि हमारा जो करेंसी का रेट है that is declining, right? तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अरे यार अगर एक $1 के लिए 70 रुपीज़ अगर हमारा करंट रेट है तो अगर ये 80 हो जाता है सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गुड फॉर द नेशन. इट इज़ समथिंग विच इज़ शोइंग कि हमारी करेंसी का वैल्यू कम होता जा रहा है एंड कहीं ना कहीं दिस इज़ रिजल्टिंग बैड ये वो. बट कुछ केसेस में इट कैन हैव सम अदर थॉट एज वेल. क्या करेंसी का वैल्यूएशन कम होना भी कभी फ़ायदा हो सकता है? सी एट टाइम्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेशन ओनली. कभी कभी करेंसीज को कंट्रीज खुद भी इस तरह से रेगुलेट करती है कि उसका वैल्यूएशन थोड़ा कम हो बिकॉज दैट सपोर्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड, राइट? नंबर 2, जस्ट थिंक फ्रॉम अ पर्सन जिसको कहीं फॉरेन से कुछ फॉरेन करेंसी में पेमेंट आने वाला है, राइट? सो सपोज यू विल रिसीव $1000 इन 10 days. ओके, आज का रेट है 70, 10 दिन बाद का रेट हो रहा है 75 अजम्पशन. सो आज आपको अगर वो $1000 मिलते तो आपको कितना मिलता? 70,000. 10 दिन बाद मिल रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है? 75,000. तो क्या करेंसी का वैल्यूएशन कम होने से आपको कुछ नुकसान हुआ?
ऑन द कॉन्ट्ररी सच्चे देशभक्त की तरह सोचते हैं अभी हम, अगर यही रेट यानी डॉलर का वैल्यू कम हो रहा है, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो वो $1 अगर अब हम 65 रुपीज़ में अगर बाय कर सकते हैं, तो 10 दिन बाद आपको जो 70,000 आज के हैं उसकी जगह आपको मिलेंगे 65,000। दूसरा व्यू, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, तो कभी कभी द करेंसी वैल्यूएशन अगर डिक्रीज होता है तो वो कभी कभी कुछ बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। सो जब हम फॉरेन करेंसीज के बारे में पढ़ेंगे, हम अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसीज के बारे में बात करेंगे। कुछ कंपनीज है जो अपनी करेंसीज को लेके बहुत रिजिड हैं, राइट। कुछ कंपनीज है जिन्होंने फ्लेक्सिबल रेट्स दे रखी है, कुछ हैं जो बेस क्रिएट करती है लाइक US डॉलर, उसको हम किसी भी डिनोमिनेशन में चेक कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के डिनोमिनेशंस में चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम चाइनीज़ येन की बात करते हैं तो वहाँ पर दे आर लिटिल रिजिड अबाउट देयर करेंसी मूवमेंट्स। तो ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है इन currency exchange. Regarding international trade, what are the pros, what are the cons of the international trade? How, when the international trade have begun, right in 18th century, तब से लेके अभी तक अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने जो जो थियोरीज दी है, we go through all these theories, सबके अपने अपने व्यूज़, अपने अपने आइडियाज़, वो सब कुछ आप इन चैप्टर में पढ़ोगे. Now, very important part for theory question in this chapter is role of United Nations. How World Trade Organization plays an important role in setting up the whole international trade. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फिलहाल आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट येस व्हेन विल गो थ्रू द सिलेबस विल डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट पार्ट एज वेल. अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड बहुत लो है, हम ये नहीं कह सकते अभी भी ज़ीरो है, right? There are few things, there are few essential which are still moving across the borders, right? So अभी जब हम कहेंगे international trade is as good as nothing or it is very very low, तो क्या कैसे इकोनॉमीज इस चीज़ को बियर कर रही है, कैसे नेशंस चल रहे हैं, क्या सारे नेशंस अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए, राइट? एक बहुत इम्पॉर्टेंट नीड हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की इज़ एक कंट्री में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरी कंट्री से वो चीज़ मंगवा कर उस नीड को फुलफिल करते हैं. तो क्या अब किसी कंट्री को कोई नीड नहीं है? ऐसा नहीं होता है. नीड्स आर देयर, राइट, बट येस देयर आर सम वेज एंड मीन्स टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम, दोज थिंग्स, राइट. सो ये चारों टॉपिक्स के बारे में सुन के ऐसा मुझे नहीं लग रहा है किसी को ये फील आ रहा होगा कि बहुत नया है. गाइस, इट इज़ नॉट न्यू, बट येस द कंटेंट्स आर वाइडर. ऐसे बहुत सारे जार्गन्स, ऐसे बहुत सारे टर्म्स जो हमने कभी नहीं सुने, कभी नहीं देखे, वो सब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सब्जेक्ट इज इट गिव्स यू लॉट ऑफ विजन, राइट. इकोनॉमिक्स को हम लोग नॉर्मली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हम लोग को लगता है कि ठीक है पढ़ने के लिए पढ़ना है, बट यहाँ पर यू विल गेट दैट आइडियाज, दोज व्यूज विच आर वेरी मच नीडेड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. You should understand when economists talk about the economies, when they discuss about the issues, और ये सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन से वो सारी चीज़ों का डेप्थ नॉलेज आप लोगों में आएगा, राइट. एंड एज आई हैव सेड इन द स्टार्टिंग कि जो एक दिमाग में मिथ है कि इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट, स्कोरिंग नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. लेट मी टेल यू गाइज, द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, दैट द पेपर हैज़ बीन डिजाइन्ड इन सच अ मैनर दैट इस सब्जेक्ट में बहुत मेजर प्रैक्टिकल एलिमेंट अभी भी रखा है. ओके, नेशनल इनकम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट मनी, उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर्म होता है, और बाकी सारे चैप्टर्स में स्मॉल एंड येस इट मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स. बाकी सब 2 और 3 मार्क्स में आपका पेपर डिवाइडेड है. सो द पेपर सेटअप is as that it can complement your financial management paper as well. Why? Because वहाँ पर when you solve question you need little time,
and this is being a theory part, you can do it quickly. Okay, so that is how this combination is there in your group 2. फिलहाल के लिए stay home and please be safe. I hope you all are safe and take care of yourself, take care of your families. Go through the book, go through your ICI material, and then you'll get an idea, guys. इतना सब कुछ detail मिलने के बाद I think you'll able to understand this 40 marks paper. Regarding the 60 marks thing, we'll again meet. I'll share the complete detail of financial management as well. उस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज वहाँ पर एक बहुत नया टर्म है जो हम समझेंगे. सो एज ऑफ नाउ आई वुड जस्ट साइन आउट. ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.